Everyone, today we will going to discuss about the process of urine formation. Urine क्या है? Urine formation जो है आपका, it is an end product which take place when the blood is filtered from the kidney. In human body, we have a pair of kidney, that is right kidney and the left kidney. The major function of the kidney is to filter the blood, and that filtrate which removes the unwanted substances from our body in the form of यूरिन. सो यूरिन फॉर्मेशन के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, मैकेनिज्म है जो किडनी में टेक प्लेस होता है, और यूरिन का जो फॉर्मेशन है और ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है दैट टेक प्लेस इन द मेजर यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज योर नेफ्रॉन. Each kidney consists of 1 to 1.5 million nephrons, and it forms the urine and excrete the urine from our body. So urine formation क्या है? It is a blood cleaning function. So normally about 1300 ml of blood enters the kidney. Kidney excrete the unwanted substances along with the water from the blood as urine. Normal जो urinary output होता है आपका per day का, that is 1 liter और 1.5 liter per day. This is a diagram where the urinary system or renal system is there. Two kidneys are there. One is left kidney and other one is right kidney. So here and some of the vessels are entering into the kidney and like leaving the kidney, that is your renal artery, and renal vein is living here, and here this renal pelvis is present, and two tube-like structures, these are known as ureter, from which the urine is passed to the urinary bladder. Urinary bladder is a bag-like structure where the urine is collected and stored for some hours. After that, when this bladder is full, the urine is excreted from our body through the opening that is known as urethra. So, process of urine formation. अब इसका प्रोसेस क्या है? बिकॉज यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होते हैं, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस एक्सक्रीट होते हैं बॉडी में. सो डिफरेंट प्रोसेस आर देयर इन द यूरिन फॉर्मेशन. First, when the blood passes through the glomerular capillaries, the plasma is filtered into the Bowman's capsule. Bowman's capsule क्या है आपका? It is नेफ्रॉन का पार्ट है. ये आपका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज अ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे आपका फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस होता है, और उसका लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट होता है फिल्ट्रेट का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट अपर पार्ट होता है दैट इज नॉन एज ग्लोमेरुलस, and which is consist of your that glomerulus capillaries and the Bowman's capsule. Filtrate from the Bowman's capsule passes through the tubular portion of the nephron. आपके नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, that is your glomerulus capillaries है आपका, उसके बाद PCT होता है, फिर tubular portion होता है, फिर DCT होता है, फिर आपका collecting duct होता है. तो यहाँ पे क्या है, आपका जो ब्लड जो फिल्टर होता है that is filtered in the glomerulus capillaries, और that process known as glomerular filtration. फिर वहां से फिल्ट्रेट जो ब्लड जो है that passes to the Bowman's capsule and then it goes to the tubular portion of the nephron. While passing through the tubule, the filtrate undergoes various changes in quality and quantity. मतलब जो आपका जो ब्लड जो फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, वो बाद में आगे जाके जो ट्यूबुलर पोर्शन है आपका नेफ्रॉन का, वहां पे उसकी क्वालिटी भी चेंज होती है और उसका क्वांटिटी भी change होता है, because many substances like glucose, amino acids, water and electrolytes are reabsorbed from the tubules, because these are the essential substances which should be remain in the body. ठीक है, if अगर यही जो substances है अगर यूरिन में पास आउट हो गए तो there will be deficiency of all these substances and the body may suffer. So this process called tubular reabsorption. जो फिल्ट्रेट है आपका ब्लड का, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में फिल्टर हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वापस हमें बॉडी में रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है. नेक्स्ट इज लास्ट जो होता है आपका सम अनवांटेड सब्सटेंसेस. उसी फिल्ट्रेट में क्या होता है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बॉडी से आपको एक्सट्रीट करना होता है, बिकॉज दीज आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नॉन एज आपका जो यूरिन के फॉर्म में है रिमूव करना होता है. और कुछ
सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्यूबुलर फॉर्म में आपका वेसल्स में जो फिल्ट्रेट है उसमें डायरेक्टली मिक्स होते हैं, दैट इज नॉन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन और दी एक्सक्रीशन। सो द यूरिन फॉर्मेशन जो है इसके 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट आपका रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अमॉन्ग दीज प्रोसेस फिल्ट्रेशन इज अ फंक्शनल ऑफ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन और जो सिक्रीशन, ये जो 2 प्रोसीजर्स हैं आपके, ये आपके ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट और टेक प्लेस होते हैं। फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। Glomerular filtration, as the name suggests, that it takes place in the glomerulus capillaries, process by which blood is filtered by passing through the glomerulus capillaries by filtration membrane। जो ग्लोमेरुलस है उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन जो आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, स्मॉल कैपिलरीज, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से फॉर्म होती है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सम स्मॉलर कैपिलरीज जिनका डिफरेंट मेम्ब्रेन्स है, वहां पे ये पूरा ब्लड फिल्टर होता है, फिर आगे आपका जो ट्यूबुलर पोर्शन है वहां पे ये पास आउट होता है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, दिस इज द डायग्राम वेयर द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड बॉर्मन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट हियर। एफरेंट आर्टेरियोल कमिंग हियर, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल इट इज द पार्ट ऑफ रेनल आर्टरी और दी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे। दिस इज अ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। So here afferent arteriole and these capillaries are the part of your afferent arterioles. So यहाँ पे filtration take place, filtration of the blood is take place. One structure is that is covering all these capillaries, that is a ball-like structure, that is known as Bowman's capsule. उसको बोलते हैं Bowman's capsule. Fine, here the filtration take place and the filtered blood is passes through in this tubular portion where the reabsorption and secretion of various substances take place, which maintains the osmolarity and your wastage is removed from the body in the form of urine. Filtration membrane. अब filtration membrane क्या है? Because जो glomerulus capillaries है वहां पे बहुत सारी membranes present होती है, 3 types की layers होती है, उसके थ्रू क्या है blood आपका filter होता है। First is your glomerular capillary membrane, basement membrane and visceral layer of Bowman's capsule। जो फर्स्ट लेयर है आपका दैट इज योर ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। सिंगल जो आपकी सिंगल लेयर है एंडोथेलियल सेल से आपका फॉर्म होता है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बीच में प्रेजेंट होता है उससे अटैच्ड होता है। द कैपिलरी मेम्ब्रेन हैज मेनी पोर्स कॉल्ड फेनेस्ट्रे और उनका डायमीटर होता है 0.1 माइक्रोन। दिस लेयर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। सेकेंड है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या है आपका विसरल लेयर ऑफ दी आपका बॉमन्स कैप्सूल फ्यूज टुगेदर। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो बॉमन्स कैप्सूल के क्या 2 लेयर्स होता है, एक होता है विसरल, एक होता है पेराइटल। सो विसरल लेयर के साथ में ये अटैच्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। द फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड द एपिथेलियम ऑफ द विसरल लेयर ऑफ द बॉमन्स कैप्सूल। थर्ड आपका विसरल लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। अब जो आपका बाउल लाइक स्ट्रक्चर था पीछे नेफ्रॉन में, वहां पे क्या है 2 लेयर्स, वो भी 2 लेयर से फॉर्म होता है। उसकी जो इनर लेयर होती है वो डायरेक्टली जो आपके ग्लोमेरुलस है उससे अटैच्ड होती है और जो आउटर लेयर होती है वो उनके बीच में गैप होता है। सो विसरल लेयर ऑफ द बॉमन्स कैप्सूल क्या है आपका सिंगल लेयर फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स विद पेडिकल्स और पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे और ये उनके बीच में आपका कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है। द क्लेफ्ट लाइक स्पेस इज कॉल्ड स्लिट पोर और द फिल्ट्रेशन स्लिट। जो फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू दी स्लिट पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं आपके विसरल लेयर में। सो वहां पे क्या है आपका फिल्ट्रेशन टेक प्लेस होता है। प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब क्या है जो प्रोसेस है आपका, पहले तो जो मेम्ब्रेन्स डिस्कस करा वो तो 3 मेम्ब्रेन्स थी। अब यहाँ पे प्रोसेस किस तरह से आपका जो ब्लड है फिल्टर होता है आपका ग्लोमेरुलस में। When the blood passes through the glomerular capillaries, the plasma is filtered into the Bowman's capsule. प्लाज्मा क्या है आपका फिल्टर हो जाता है Bowman's capsule में। जो सब्सटेंसेस है सारे सब्सटेंसेस वहां पे फिल्टर हो जाएंगे एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन, बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन क्या है आपके जो उनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, वो वहां पे उन कैपिलरीज को पास नहीं कर पाता। सो द फिल्टर फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और जो फिल्ट्रेट ब्लड है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर
फिल्टर। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज इवन द माइन्यूट पार्टिकल्स आर फिल्टर। अल्ट्रा मीन्स की सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल भी वहां से आपका फिल्टर हो जाता है। बट प्लाज्मा, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो वहां पे फिल्टर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ लार्ज मोलिकुलर साइज। The protein molecules are larger than the slit pores present in the endothelium of the capillaries. As we had discussed the layers, वहाँ पे slit pores present है, podocytes present है, जिनका जो diameter है बहुत छोटा होता है। So जो आपके plasma proteins होते हैं ये क्या है, वहाँ पे filter नहीं हो पाते। So the glomerular filtrate contains all the substances except the plasma proteins. Here you can see these are the part of this glomerular and the Bowman's capsule. Afferent arteriole is coming here. These are the glomerulus capillaries where the filter is passed. This bowl-like structure is known as Bowman's capsule. Here Bowman's capsule, this inner layer which is directly attached to the glomerulus capillaries, this is known as visceral layer, and this outer layer that is known as parietal layer of Bowman's capsule. Here some cells are present which plays a very important role, and this is the visceral layer which is directly attached to this basement membrane of the capillaries. Glomerular filtration rate. अब यहाँ पे क्या है, जो ग्लोमेरुलस आपका फिल्ट्रेट होगा कैपिलरीज में, उसमें क्या है, डिफरेंट फ्रैक्शंस है कि कितना 1 मिनट में कितना होगा, कितना रेट के साथ में होगा, कितना टाइम लगेगा उसको फिल्टर होने के लिए। सो फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एज अ रेट मीन्स की टाइम, कि कितना टाइम होगा उसका। इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनी इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम। मतलब ये है कि जो रेट है आपका, जो टाइम है, दोनों किडनी से आपका 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है फ्रॉम बोथ द किडनीज, दैट इज नॉन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब दोनों किडनी से 1 मिनट में कितना ब्लड वहां फिल्टर हुआ, that is known as glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate आपका 125 ml per minute और 180 लीटर पर डे होता है। दूसरा क्या है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में क्या है, आप यहाँ पे फ्रैक्शन निकालोगे कि जो टोटल एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आया था आपका, उसमें से कितना परसेंट आपका, कितना पोर्शन आपका फिल्ट्रेट हो चुका है और कितना आपका फिल्टर नहीं हुआ है। So it is a ratio between the renal plasma flow and the glomerular filtration rate. ठीक है, जो 1 मिनट में कितना फिल्टर हुआ और प्लाज्मा वहां से कितना पास आउट हुआ, दैट इज नॉन एज आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इट इज एक्सप्रेस परसेंटेज में होता है, इट इज अबाउट 15 to 20%। प्रेशर डिटरमाइनिंग फिल्ट्रेशन। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है कैपिलरीज में, जो आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसमें डिफरेंट क्या है, प्रेशर्स आपका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर्स है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई, थर्ड वन इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बाउमन्स कैप्सूल। So these pressure determines the GFR by either favoring or opposing the filtration. मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है हमारा कि 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होगा, उसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस है आपका, वहां पे डिफरेंट प्रेशर्स क्रिएट होते हैं। वो कैपिलरी मेम्ब्रेन का भी हो सकता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण भी हो सकता है, और दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बाउमन्स कैप्सूल हो सकता है। ये सारे 3 प्रेशर्स डिटरमाइन करते हैं कि किस रेट से आपका ब्लड आपका फिल्टर होगा। फर्स्ट आपका आता है दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या है, इट इज अ प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ब्लड आपका जिस फोर्स के साथ में आता है वो क्या करता है, आपकी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसको पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, बिकॉज उसका वेलोसिटी इतना हाई होता है। इट इज अबाउट 60 mmHg एंड इट वेरीज बिटवीन 45 to 70 mmHg. Glomerular capillary pressure is the highest capillary pressure in the body. This pressure favors the glomerular filtration because जो efferent arteriole है आपका, उसमें जो ब्लड आता है वो इतनी स्पीड से आता है, इतने प्रेशर के साथ आता है, तभी क्या है जो कैपिलरीज है उस चीज को फिल्टर कर पाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये क्या करता है, उसको फेवर करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ग्लोमेरुलाई।
अब क्या है, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, पोडोसाइट्स है, उनके जो स्लिट पोर्स है, वहां से प्लाज्मा प्रोटीन्स आपका फिल्टर तो नहीं हो सकते, बट इट कम्स अलोंग विद द ब्लड। ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में मिक्स होते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते, तो वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं आपके जो पोर्स है, जो आपके मेम्ब्रेन्स है वहां पे। These plasma proteins are not filtered through the glomerular capillaries and remain in the glomerular capillaries. तो फिल्टर नहीं होते हैं, वो वहीं पे डिपॉजिट होते चले जाते हैं, and this creates a negative pressure because अगर वहां पे जो पोर्स वगैरह जो है आपका मेम्ब्रेन्स पे इनके डिपोजिशन होने से, क्लोज होने से वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। These proteins develop the colloidal osmotic pressure which is about 25 mmHg and it opposes the glomerular filtration. ठीक है, तो आपका क्या है, ये जो कोलाइडल ऑस्मोटिक जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ दी प्लाज्मा प्रोटीन्स वहां पे डिपॉजिट होते हैं और वो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स पे नेगेटिव प्रेशर आपका एक्सर्ट करते हैं जो उसको प्रिवेंट करेगा फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द Bowman's कैप्सूल। इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट इन Bowman's कैप्सूल। जब आपका ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो जब नीचे आएगा Bowman's कैप्सूल में, एंटर करेगा बाउल लाइक स्ट्रक्चर में, सो वहां पे क्या होगा, एक अलग सा प्रेशर एक्सर्ट होता है Bowman's कैप्सूल में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैप्सुलर प्रेशर। इट इज अबाउट 15 mmHg। इट ऑल्सो अपोजेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये भी क्या करता है, उसको अपोज करता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेक्स्ट है आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, बैलेंस बिटवीन द प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन एंड प्रेशर अपोजिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये एक बैलेंस है जिसमें क्या है, कुछ जो जैसे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, ये क्या करता है आपका, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये सब उसको अनफेवर करते, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते, बट जो आपका दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है ये उसको फेवर करता है। तो इसका क्या रहेगा, आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम निकाल सकते हैं कि कितना उसको फेवर कर रहा है, कितना उसको अपोज कर रहा है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर और एसेंशियल फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसको इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बोलते हैं और इफेक्टिव और एसेंशियल फिल्ट्रेशन प्रेशर। इट इज अबाउट 20 mmHg एंड इट वेरीज बिटवीन 15 एंड 20 mmHg। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज योर फैक्टर्स रेगुलेटिंग GFR। अभी हम लोग सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे और फिल्ट्रेशन पे ही है अभी। सो यहाँ पे क्या है, अलोंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, अलोंग विद लाइक जो मेम्ब्रेन्स है आपके डिफरेंट, उनके साथ साथ में कुछ फैक्टर्स जो है, एक्स्ट्रा फैक्टर्स, वो उसको इफेक्ट कितना करते हैं उसकी रेट को। फर्स्ट इज योर रीनल ब्लड फ्लो। It is the most important factor that is necessary for the glomerular filtration because जो एफरेंट आपका जो रीनल आर्टरी है वहां से जिस स्पीड के साथ में ब्लड आएगा, जिस वॉल्यूम के साथ में ब्लड आएगा आपका एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जो कैपिलरीज में एंटर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो रीनल आर्टरी से जो ब्लड आया है आपका वो कितने वेलोसिटी और कितने वॉल्यूम के साथ में है। बिकॉज अगर प्रेशर कम होगा, उसका स्पीड कम होगा और वॉल्यूम कम होगा, तो जो फिल्ट्रेशन है आपका वो उस स्पीड से नहीं हो पाएगा। GFR glomerular filtration rate is directly proportional to the renal blood flow. Normal blood flow both the kidneys in 1300 ml per minute and the renal blood flow itself is controlled by the auto regulation. Tubular glomerular feedback. सेकेंड फैक्टर आपका ये है कि जो आपका जो ट्यूबुलर पोर्शन है वो किस तरह से आपका जो फिल्ट्रेशन है आपका उसमें मैकेनिज्म में कैसे वर्क करता है। आपका क्या है, जो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर ग्लोमेरुलस एंड Bowman's कैप्सूल, वहां तो कैपिलरीज प्रेजेंट है, वहां पे ये आपका फिल्टर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम नेफ्रॉन से नीचे जो मूव, नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है आपका ट्यूबुलर पोर्शन, वहां जब मूव करते हैं तो वहां पे डिफरेंट आपका प्रेशर और डिफरेंट मैकेनिज्म रोल प्ले करता है। Tubuloglomerular feedback is a mechanism that regulates the GFR through the renal tubule and the macula densa. जो renal tubule है आपका PCT, loop of Henle, DCT, ये सब वहां पे रोल प्ले करता है। Macula densa क्या है? Macula densa एक GGA का पार्ट है, GG juxtaglomerular apparatus, जिसमें क्या है आपका जो DCT है वो क्या करता है, thick ascending limb, वो is sensitive to the sodium chloride in the tubular fluid। तो ये क्या है, उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये पोर्शन है आपका थिक एसेंडिंग लिम्ब का जो आगे ऊपर जब मूव करता है ट्यूबुलर पोर्शन, तो इट
स्टेज एट बिटवीन द एफरेंट और इफरेंट जो आर्टेरियोल्स है उनके बीच में ये प्लेस करता है. So it is very sensitive to the sodium chloride in the tubular fluid. When the glomerular filtrate passes through the terminal portion of the thick ascending segment, that is your macula densa, acts like a sensor. वो वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. किसके लिए? सोडियम क्लोराइड के लिए. वो बहुत उसकी सेंसिटिविटी शो करता है कि वेदर द सोडियम क्लोराइड का जो रेशियो है वो कम है फ्लूइड के अंदर और जो फिल्ट्रेट के अंदर या फिर ज्यादा है. It detects the concentration of sodium chloride in the tubular fluid according alters the GFR. और ये जो आपका मैक्यूला डेंसा है ये क्या करता है, आपका सोडियम क्लोराइड के लिए बहुत सेंसिटिव है और ये क्या करता है कि कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का कितना है आपका जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग ये क्या है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और जो GFR आपका उसके अकॉर्डिंग ऑल्टर होता है. Macula densa detects the sodium chloride concentration by sodium potassium chlorine आपके जो कॉन्ट्रास्ट सपोर्टर्स होते हैं आपके. सो यहाँ पे जो मैक्यूलर डेंसा है किस तरह से सेंसिटिव है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं. When the concentration of sodium chloride increases in the filtrate, जब जो फिल्ट्रेट है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जब नीचे आता है तो यहाँ पे क्या सोडियम क्लोराइड अगर इंक्रीज है वहां पे फिल्ट्रेट में, so concentration of the sodium chloride increases in the filtrate, तो GFR भी क्या होता है वहां पे increase होता है. Macula densa release an adenosine from ATP. Adenosine causes constriction of the afferent arteriole, so the blood flow through the glomerulus decreases, leading to decrease in GFR. Adenosine acts as afferent arteriole via adenosine A1 receptors. So यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका जो मैक्यूला डेंसा जो है दैट इज सेंसिटिव फॉर दी सोडियम क्लोराइड के लिए. अगर GFR में जब सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो GFR क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो मैक्यूला डेंसा उसको क्या करता है, बैलेंस करता है एडेनोसाइन जो आपका रिलीज करेगा और वो क्या करेगा एफरेंट आर्टेरियोल का कंस्ट्रिक्शन करेगा तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा. कम होने से क्या आपका जो GFR का जो रेट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. There are several other factors which increases or decreases the tubular glomerular feedback. वो कौन कौन से हैं आपके, एडेनोसाइन है, थ्रोम्बोक्सिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है. ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जो ट्यूब्यूल पोर्शन है नेफ्रॉन का वहां पे GFR कितना है. फैक्टर्स डिक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक. कुछ फैक्टर्स ऐसे भी है जो नेगेटिव वर्क करते हैं जो उसका डिक्रीज करते हैं. दैट इज आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है, साइक्लिन AMP है, नाइट्रस ऑक्साइड है. फिर दूसरा क्या है, when the concentration of sodium chloride decreases in the filtrate. ठीक है, जब अगर मैक्यूला डेंसा में आपका जो सोडियम क्लोराइड है फिल्ट्रेट में जब डिक्रीज होता है तो तब GFR पे क्या इफेक्ट पड़ता है. जब आपका when the GFR decreases the concentration of sodium chloride and decreases in the filtrate. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज रहता है. मैक्यूला डेंसा क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करता है, ब्रेडिकाइनिन एंड रेनिन को. ये सब क्या करते हैं, डायलेटेशन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल एंड दैट इंक्रीजेस द मोर ब्लड फ्लो. दैट मोर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली GFR इंक्रीज होगा. जब GFR इंक्रीज होगा तो फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर. Glomerular filtration rate is directly proportional to the glomerular capillary pressure. That is कितना है, 60 mmHg है. ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी प्रेशर हमने पहले डिस्कस करा था वो क्या करता है, आपका GFR को इंक्रीज करेगा और वो क्या करता है, आपका फेवर करता है फिल्ट्रेशन में. कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको फेवर नहीं करता. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बॉमन्स कैप्सूल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपका फिल्ट्रेशन को क्या करता है, फेवर नहीं करता है. जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो GFR क्या होता है, डिक्रीज होता है. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल. आपका जो एफरेंट आर्टेरियोल है रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो. अगर आपका एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू जो GFR है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल. अब इफरेंट आर्टेरियोल जो है अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो GFR क्या हो जाता है, आपका
इंक्रीज हो जाता है, बट दैट इज ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर, renal blood flow and the GFR are not affected as long as the mean जो आपका जो ब्लड प्रेशर है सिस्टमिक वो 60 to 180 mmHg होता है और ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ज्यादा यहाँ पे उसका फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका दैट इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स है वो सिंपैथेटिक नर्व से सप्लाइड होते हैं। सो माइल्ड टू मॉडरेट स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व डज नॉट कॉजेस एनी चेंज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वो आपका ब्लड वेसल्स को रिलीज दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस देन नॉन adrenaline. The effect is more severe on the efferent arterioles than on the efferent arterioles. Surface area of capillary membrane, obviously जो अगर capillary membrane का surface area प्रॉपर है तभी GFR वहाँ पे आपका फिल्टर हो पाता है, नहीं तो वहाँ पे क्या है बिकॉज इन केस ऑफ सम ऑफ द renal disease और लाइक autoimmune disorders, फॉर एग्जाम्पल आपका डायबिटीज मेलाइटिस है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई फैट है, इस तरह के डिजीजेस में क्या है जो कैपिलरी मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके ब्लॉक हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो GFR है वो आपका फिल्टर जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, GFR is directly proportional to the permeability of the glomerular capillary membrane. Abnormal conditions like hypoxia, lack of blood supply, presence of toxic agent, permeability of capillary membrane increases. In such conditions, plasma proteins are also filtered and excreted in the urine. Hormonal and other factors. अब यहाँ पे क्या है जो GFR है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट है आपका वो वहां पे बहुत सारे हार्मोन्स भी आपका रोल प्ले करते हैं। दैट इज जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, डोपामीन है, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड है। फैक्टर्स डिक्रीजिंग द GFR बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये सारे फैक्टर्स है जो GFR को वेसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू आपका डिक्रीज करते हैं। एंजियोटेंसिन सेकेंड, नॉन एड्रेनलिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट आपका हम लोग मूव करते हैं दैट इज योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो था वो प्रोसेस दैट वाज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स है, मैकेनिज्म्स है और प्रेशर्स थे डिफरेंट डिफरेंट जो हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब दिस होल प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। Tubular reabsorption is a process by which water and the other substances are transported from renal tubules back to the blood. जो आपका renal जो tubular like structure है नेफ्रॉन का वहां से क्या है many substances will be reabsorbed because these substances that are essential for providing the energy in the body that should be वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर तो हो गया है बट दैट शुड बी रीअब्सॉर्ब, यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होना अदरवाइज द बॉडी विल सफर, देयर विल बी वीकनेस इन द बॉडी। सो व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स फ्रॉम द Bowman's capsule passes to the tubular portion of nephron, both quantitative and qualitative changes occurs. Large quantity of water, more than 99% electrolytes are reabsorbed substances into the interstitial fluid of renal medulla and that tubular, since the substances are taken back into the blood from the glomerular filtrate, the entire process known as tubular reabsorption. Tubular reabsorption इसलिए बोला जाता है बिकॉज जितने भी जो फिल्ट्रेट में जो सब्सटेंसेस है उनको हम वापस अपने ब्लड में थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका वापस मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो ये रीअब्जॉर्प्शन होगा इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस आपका इजिली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कौन सा प्रेशर के साथ में एब्जॉर्ब होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज नॉन एज ए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बिकॉज द ट्यूबुलर सेल्स रीअब्जॉर्ब ओनली द सब्सटेंसेस दैट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। वो उन्हीं को रीअब्जॉर्ब करेंगे जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो बॉडी के लिए अनवांटेड वेस्ट है या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो आपका यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, विटामिन्स है, वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं रिनल ट्यूब्यूल से। और सम ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक जो रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड एंड ऑल। मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, अब ट्यूबुलर पोर्शन में भी क्या है टू टाइप्स के मैकेनिज्म है जहां पे
एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इट नीड्स लिबरेशन ऑफ एनर्जी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एटी। मतलब जो एक्टिव है आपका उसके लिए क्या है, आपको एनर्जी चाहिए, दैट यू विल यूज द एनर्जी फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। जैसे सोडियम है, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड, इन सब के लिए क्या है, वी नीड एनर्जी फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। दिस प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये सारे क्या है, वो सब्सटेंसेस है जिनको एनर्जी रिक्वायर नहीं होता, वो अपने आप ही पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे क्लोराइड है, यूरिया एंड वाटर है। साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, अब जो ये ट्यूबुलर पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसका डिफरेंट साइट होता है कि जो ट्यूबुलर पोर्शन है आपका ये किससे फॉर्म होता है, पीसीटी है, फिर लूप ऑफ हेनले, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, फिर आपका डीसीटी है। यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब। पीसीटी में आपका जो सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी दैट इज अबाउट 88% जो होते हैं वो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स हुआ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे आपके पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब फ्रॉम लूप ऑफ हेनले, जो ट्यूबुलर आपका हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे सोडियम एंड क्लोराइड ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, और डीसीटी में आपका सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब। अब जो ट्यूबुलर पोर्शन है आपका, उसमें रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब यही जो रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है आपके ट्यूबुलर पोर्शन में, ये भी क्या है, किसी से कंट्रोल होता है। इसके 3 फैक्टर्स है, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, हार्मोनल फैक्टर्स एंड द नर्वस फैक्टर्स। जो ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस है, इट इज अ बैलेंस बिटवीन द फिल्ट्रेशन एंड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूट्स एंड वाटर इन द किडनी। अब रीअब्जॉर्प्शन जो होगा ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड फिल्ट्रेट हुआ है और उसमें से कितना आपका रीअब्जॉर्ब हुआ है और वाटर किडनी में वापस। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है तो ट्यूबुलर लॉट ऑफ सोल्यूट्स एंड द वाटर इन द पीसीटी इज आल्सो इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली जब जीएफआर इंक्रीज होगा तो सब्सटेंसेस भी ज्यादा फिल्टर होंगे और ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वो। नर्वस फैक्टर्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो सप्लाई करता है, वो भी क्या है आपका रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट आल्सो इंक्रीजेस द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग सेक्रेटिंग ड्रेनिंग फ्रॉम जेजीए दैट इज योर जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। नेक्स्ट लास्ट प्रोसीजर आपका ट्यूबुलर सिक्रीजन, जो यूरिन फॉर्मेशन का जो लास्ट है दैट इज योर ट्यूबुलर सिक्रीजन। Along with the reabsorption, many substances are secreted in the tubular portion. जो ट्यूबुलर पोर्शन है आपका नेफ्रॉन का, वहां से रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही है, उसके साथ साथ में बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या है जो ट्यूब्यूल्स है वो उसको सिक्रीट करता है, बाय विच सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स। ब्लड से वो रीनल ट्यूब्यूल में आपका ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर एक्सक्रीशन भी बोला जाता है। Reabsorption from renal tubule, some substances are also secreted into the lumen from the peritubular capillaries through the tubular epithelial cells. Substances कौन कौन से हैं जो आपका secrete होता है ट्यूबुलर पोर्शन में, जैसे पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन आयंस हो गए, ये सब क्या है आपका इसमें ट्यूबुलर पोर्शन में secrete होता है। यूरिया is secreted in the loop of Henle. So this all these was the process for the urine formation that contains the glomerular filtration, tubular reabsorption and the tubular secretion. Thank you so much.